Jai Swaminarayan, everyone. Professional Ethics, SAM 5. The subject code is 3150709. In the previous lecture, Unit 1, we have discussed concepts and theories of business ethics, definition of ethics, difference between personal ethics and business ethics, advantages of professional ethics, concept of morality, morality and law, religion and morality, and how our moral standards form. But today we are going to discuss in unit number 2 business ethics. Unit number 2 business ethics. आपके सब में माइंड है मैडम ये बिजनेस एथिक्स है क्या? तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स. Ethical principles are universal standards of right and wrong behavior. Here we are going to discuss in this chapter we are going to discuss the contents of unit number 2 is principles of personal ethics. Principles of personal ethics, personal or of professional यानी कि business ethics, evolution of business ethics over the years, honesty, integrity and transparency in business ethics, roots of unethical behavior, distinction between values and ethics, ethical decision making. These are the contents of business ethics unit number 2. So let's discuss here all. What is the meaning of business ethics? First of all, you have to be aware of what is the meaning of business ethics. Business ethics can be defined as written and unwritten codes of principles. Written and unwritten codes of principles. वो written भी कोड हो सकता है and unwritten codes of principles की ये बात कर रहे हैं, और वो भी बिजनेस यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स में written and unwritten codes of principles and values that govern decisions. वो डिसीजंस लेने के लिए, बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए हम लेते हैं, एंड एक्शंस विदिन अ कंपनी. बिजनेस एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज रिटन एंड अनरिटन कोड्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़. वो रिटन भी होते हैं एंड अनरिटन कोड्स ऑफ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ हैं दैट गवर्न डिसीजंस, जो गवर्न करते हैं डिसीजंस को, एंड एक्शंस डिसीजन दोज आर टेकिंग एन एम्प्लॉई विदिन अ कंपनी. एक्शंस और डिसीजंस जो आप कंपनी के अंदर लेके रहते हो तो उसके लिए कोई रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू एंड्रू कैन, according to him, what is the meaning of and what is the definition of business ethics? Business ethics is the study of business situations. Business ethics, it is the study of business situations, activities and decisions. It is the study of business situations, activities within a company. जो सिचुएशंस पे आप काम कर रहे हो, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, क्रिएटिविटी कुछ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में, एंड डिसीजंस, और जो डिसीजन आप ले रहे हो, वेयर issues of right and wrong are addressed. So a person must be involved कि वो डिसीजन जो भी एक्शन जो वो ले रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग. इट मे बी एड्रेस कि आपको कंपनी को कैसे फ्यूचर में डेवलप करना है. बिजनेस एथिक, इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस वेयर issues of right and wrong are addressed. There is one quote regarding business ethics. Being good is a good business.
यस इट इज़ राइट डियर ऑल. बीइंग गुड, अगर इंडिविजुअली वो गुड है, वही एक सिलेक्ट पथ अपने लिए करता है और सोच के कि नहीं मैं अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, आई हैव सिलेक्ट द राइट पथ, राइट एक्शन. ओके, तो आपका बिजनेस ऑब्वियसली सक्सेसफुल ही होगा, जैसे कि टाटा. सो बीइंग गुड इज़ अ गुड बिजनेस. प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल एथिक्स. प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल एथिक्स, आपके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं विच यू आर टेकिंग अ स्टेप्स फॉर योर पर्सनल एथिक्स. पर्सनल एथिक्स माइट ऑल्सो बी कॉल्ड मोरालिटी. एथिक्स में हमने पढ़ा था कि पर्सन मस्ट बी अवेयर ऑफ वॉट एवर ही इज़ गोइंग टू डू, इज इट राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड फॉर हिज फ्यूचर. पर्सनल एथिक्स माइट ऑल्सो बी कॉल्ड मोरालिटी. It is might also be called morality. What is right and wrong, what is moral for him, since they reflect general expectations of any person in any society. वो कोई भी सोसाइटी में आप कहीं पर भी हो, जनरल एक्सपेक्टेशंस इट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सनस की ऑफ एनी पर्सन, जो वो छोटे से बड़ा होकर कोई भी बिजनेस हो, बट ये इट शोज योर मोरालिटी कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो इन एनी सोसाइटी. आप कोई भी सोसाइटी में हो, पर डिपेंड ये पर्सनल एथिक्स के बारे में है कि वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. जनरल एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी पर्सन इन एनी सोसाइटी, एक्टिंग इन एनी कैपेसिटी. आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, गुड डिलीवरी है प्रोडक्ट की, खुद के बारे में सोचने की नहीं, मेरा ऐसा डिसीजन है, वो मेरी सोसाइटी का भी है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का है. सो यू मस्ट हैव टू बी मोरल. प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल एथिक्स, इट इंक्लूड्स देर आर सम प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल एथिक्स विच इंक्लूड्स कंसर्न फॉर द वेल बींग ऑफ अदर्स. अ पर्सन इज पर्सनल एथिक्स की बात है तो इंडिविजुअल ही इज़ कंसर्नड, ही इज़ वरीड अबाउट वेल बींग ऑफ अदर्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, वॉट एवर द पथ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, तो उनकी दूसरे पे उसकी असर कैसी है, मेरा ये बिजनेस कैसे डेवलप होगा डे बाय डे, वो अप जा रहे हैं कि डाउन जा रहा है. सो यू मस्ट हैव टू बी कंसर्न एंड वरीड अबाउट योर ओन बिजनेस ऑल्सो. रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ अदर्स. रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी यानी राइट कंडीशंस ऑफ अदर्स. रिस्पेक्ट करिए दूसरों की जो कंडीशन पे है, जो भी वो कर रहे हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन हु इज़ डूइंग अ जॉब लाइक यू. ट्रस्टवर्दीनेस एंड ऑनेस्टी. जहाँ पर बिजनेस की बात है, पर्सनल एथिक्स की बात है, जहाँ पर भी हमारी इंडिविजुअल की बात होने लगी, वहाँ ट्रस्ट मस्ट नेसेसरी एंड ऑनेस्टी मस्ट बी देयर इन यू एंड इन योर वर्क ऑल्सो. आप फिर वर्क से जाने जाओगे सोसाइटी में. सो ट्रस्टवर्दीनेस एंड ऑनेस्टी मस्ट बी देयर. बेसिक जस्टिस, बीइंग फेयर. बेसिक जस्टिस रखिए, सबके लिए न्याय रखो, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स एक से रखे हो. एंड बीइंग फेयर इन एवरी जजमेंट, कोई भी डिसीजन रहे हो, यू हैव टू बी फेयर, ट्रांसपेरेंट रहो. प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल एथिक्स, इट इंक्लूड्स ऑल्सो fairness and ability not to take undue advantage of others. Not to take undue advantage of others means कि जो भी आप टास्क नहीं किया है, so never accept कि I have done it. No. Fairness, cleanliness रहे, and ability not to take undue advantage of others. दूसरों का advantage never ever take. Benevolence, you must have to kindness. कैरेक्टर काइंडनेस रखो या पोलाइटनेस रखिए. एम प्रिवेंटिंग हार्म टू एनी क्रिएचर. एम प्रिवेंटिंग, अगर आप प्रिवेंट कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी को, हार्म होने से बचा रहे हो आप टू एनी क्रिएचर, जो भी क्रिएचर है, यू हैव टू योर टास्क इज टू बी काइंडनेस, benevolence or in preventing harm to any creatures. Personal ethics produce good leadership. पर्सनल एथिक्स प्रोड्यूस गुड लीडरशिप. आपके टास्क से आप जाने जाओगे डे बाय डे, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ गुड लीडर, एंड लीडरशिप भी आप वहाँ पर
इन GD क्यों ना हो, आप वहाँ पर यू कैन ऑल्सो प्ले अ गुड लीडर रोल वेर यू आर, विच हेल्प टू क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटीज़। वो आपको हेल्प करता है बेटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटी को क्रिएट करने में डे बाय डे। पर्सनल एथिक्स प्रोड्यूस गुड लीडरशिप्स, वो गुड लीडर आपको बनाएगा, मोर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ऑब्वियसली यू कैन बिकम अ गुड लीडर, विच हेल्प टू क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशंस। एक इंडिविजुअल से बेटर ऑर्गेनाइजेशंस भी बनेगी एंड सोसाइटीज़ ऑल्सो, आपकी सोसाइटीज़ भी बनेगी अच्छी। रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ अदर्स, द राइट एंड कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। उनके राइट, उन्होंने जो राइट डिसीजंस लिए हैं बाकी लोगों ने, और जो भी कंडीशंस में लिए हैं सिचुएशंस में, यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। तो आपको सामने से ऑब्वियसली फ्रूटफुल रीज़न मिलेगा ही। कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, यू मस्ट बी हैव टू वरीड अबाउट कि दूसरों का भी अच्छा हो रहा है। हाँ, बेसिक जस्टिस, बेसिक जस्टिस रहिए, ऑब्वियसली न्याय बिल्कुल सरखा होना चाहिए। एंड बीइंग फेयर, बीइंग ट्रांसपेरेंट व्हाट यू आर डूइंग। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये थी प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल एथिक्स की बात। अब जो हमारा पॉइंट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये बिजनेस एथिक्स वो भी बिजनेस एथिक्स में हम अपने एथिक्स को कैसे ला सकते हैं। इंडिविजुअल्स एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, इंडिविजुअल होता है जब वो प्रोफेशनल बिजनेस एथिक्स में वो इन्वॉल्व होता है तो उसकी कैपेसिटी उन्हें टेक ऑन इन एडिशनल बर्डन ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही और शी मस्ट बी रेडी टू टेक एनी बर्डन ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक सच एज मेडिसिन, लॉ, अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग। वो कोई भी फील्ड में हो, बट यू मस्ट बी एवर बी रेडी टू टेक एनी जजमेंट हो, कोई भी टास्क आपको लेना है, कोई क्रिएटिव लेना है, कोई भी बर्डन हो, यू मस्ट बी एवर बी रेडी। दीज रिटन कोड्स प्रोवाइड रूल्स ऑफ कंडक्ट, कि अब आप अपने आप के रूल्स कैसे बना रहे हो एंड डू यू फॉलो इट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, yes or no, it depends on individuals. These written codes provide rules of conduct and standards of behavior based on the principles of professional ethics. ये standards of behavior, आपका behavior भी standard होना चाहिए, which are based on the principle of professional ethics. Personal ethics, personal behavior वो भी standard behavior, इसके इफेक्ट किस पे है, प्रोफेशनल एथिक्स पे इफेक्ट भी होती है। विच इंक्लूड्स ऑनेस्टी, नंबर 1 ऑनेस्टी, कि आप कितने ऑनेस्ट हो। इंटेग्रिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड, आपकी क्वालिटी कैसी है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितनी गुड क्वालिटी है, और मोर एंड मोर डे बाय डे आपकी क्वालिटी मार्केट में अच्छी बन रही है। सो क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड। प्रॉमिस कीपिंग, वंस यू प्रॉमिस यू हैव टू कीप इट, आपको लगन होनी इन्हें मैंने इसके साथ कमिटमेंट किया है, आई हैव टू कंप्लीट दैट प्रॉमिस एट एनी कास्ट। लॉयल्टी, यू मस्ट बी लॉयल विथ ईच एंड एवरी पर्सन। फेयरनेस, योर डिसीजंस और वॉट एवर यू ऑब्जर्व वो भी फेयरनेस होने चाहिए सबके लिए, एक सबके। कैरिंग, यू मस्ट बी कैरिंग एंड वरीड अबाउट अदर्स, तो आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे इम्प्रूव होगी। सो यू मस्ट बी केयरफुल ऑल्सो। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जितनी रिस्पेक्ट आप दूसरों की करोगे सामने से आपको इतना ही अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। सो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ऑल्सो। लॉ अबाइडिंग, यू मस्ट बी अबाइडिंग विथ लॉ के अबाइड रहो, नहीं कि रहो किस दूर, यू मस्ट ओबे द लॉ। कमिटमेंट टू एक्सलेंस, कमिटमेंट करो जो वेर यू आर, हु यू आर, यू हैव टू कमिटमेंट यू फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो। फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को कमिटमेंट करो टू बिकम अ गुड एंड एक्सलेंट। कमिटमेंट टू एक्सलेंस। ऑनेस्टी इज द फास्टेस्ट वे टू प्रिवेंट अ मिस्टेक,
ऑनेस्टी इज़ द फास्टेस्ट वे टू प्रिवेंट, वो हमें प्रिवेंट करती है मिस्टेक फ्रॉम टर्निंग इनटू अ फेल्योर। फेल्योर होने से पहले हमारी जो मिस्टेक होनी होती है वो ऑनेस्टी हमें बचा सकती है। ऑनेस्टी इज़ द फास्टेस्ट वे टू प्रिवेंट अ मिस्टेक फ्रॉम टर्निंग इनटू अ फेल्योर। मिस्टेक हमारी फेल्योर में कन्वर्ट हो उससे पहले ऑनेस्टी वो हमें बचा सकते हैं। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बीइंग अ मिस्टेक विच फ्रॉम टर्निंग इनटू अ फेल्योर। दिस टोल्ड बाय द कोटेशन इज बाय मेड बाय जेम्स एल्चर। These are the principles of business ethics: honesty, integrity, promise keeping, loyalty, fairness, caring, respect for others, law abiding, and commitment to excellence. Importance of business ethics. Importance of, अभी हमने principles of business ethics की बात की, वहाँ पर honesty, integrity, respect, केयरफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स होना चाहिए। सो एथिक्स इन्फ्लुएंस एंड कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय कमिटमेंट, कि आप एम्प्लॉय होकर कमिटमेंट क्या कर रहे हो। इन्वेस्टर एंड कस्टमर लॉयल्टी, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हो एंड मे बी केयरफुल अबाउट कस्टमर लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी कस्टमर भी देखेगा। ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मच यू लॉयल इन योर टास्क। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यू मस्ट ऑलवेज बी वरीड अबाउट कि कस्टमर मेरी टास्क से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। कस्टमर सेटिस्फैक्शंस, एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ स्टेक होल्डर्स, यू हैव टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टर्म विथ योर स्टेक होल्डर्स एंड ग्रेटर अर्निंग। ये सब होने के बाद ऑब्वियस है आपको मार्केट में ग्रेटर अर्निंग होगी ही। Once you keep the promises with these employee commitments, investing, customer loyalty, customer satisfactions, and ability to build good relation with your stakeholders and greater earning. Principles of business ethics, it includes principles of business ethics. इंटेग्रिटी, नंबर 1 हमने ऑनेस्टी पढ़ा, अब है राइट नाउ इंटेग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग। जो भी आप पद सिलेक्ट करो वो सही होना चाहिए। इज़ डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग, टेल्स बाय C.S. Lewis। C.S. Lewis का कोटेशन है, व्हाट ही टेल्स अबाउट इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग। इफ़ नोबडी इज़ वॉचिंग बट आपका पथ जो सही हो, यू मस्ट हैव टू बी अबाइड योर ओन सेल्फ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, इज इट गुड और बैड। इट इज़ टेल्ड बाय C.S. Lewis। जब नहीं कि हर एक लोग आपको वॉच करते रहे, नो, पर आपका टास्क जो आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, यू आर द जज एट दैट टाइम। सो इंटेग्रिटी रिफर्स टू होलनेस ऑफ कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंसिस्टेंसी बिटवीन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। Thoughts and converts into words and actions. Integrity it refers to wholeness of character, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके कैरेक्टर को, who you are। वो आपको जिस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके खुद को जानने का, आपके डिसीजन जो भी लिए, इज इट राइट और रॉन्ग, सो यू मस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर डिसीजंस ऑल्सो। इंटेग्रिटी इट रिफर्स टू होलनेस ऑफ कैरेक्टर demonstrated by consistency between thoughts, words and actions, which are demonstrated, वो thoughts जो ideas हैं which are converted into actions, you must have to be rethink, research कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत। promise keeping, whatever you have to done promise, you have to abide your promise. when you make a commitment, you build hope। जब भी आप किसी से कमिटमेंट करते हो ना, प्रॉमिस करते हो, यू बिल्ड होप, किसी के अंदर होप होती है, यस इसे कमिटमेंट किया है, ऑब्वियसली ये पूरा करेगा ही। व्हेन यू कीप इट अप, आप जब बाइड होते हो कमिटमेंट के लिए, दिन रात एक हो के आप होप वो सामने वाले लेके बैठा है, यस व्हेन यू कीप इट अप योर प्रॉमिस को
कमिटमेंट को जब आप लेके बैठते हो, यू बिल्ड ट्रस्ट। आपको खुद के काम में ट्रस्ट आएगा और सामने वाले को, दोस्त हु इज वॉचिंग यू, या कमिटमेंट जो जिसके साथ आपने किया है, यू बिल्ड ट्रस्ट ऑन द अदर साइड हु इज ऑब्जर्विंग योर टास्क। Ethical executives shall keep promises and fulfill commitments. Ethical executives shall keep promises. Ethical executives, they must abide and keep promises. They promise करते हैं, वो पूरी करते ही हैं with their customers, and fulfill commitments, and they fulfill commitments of their customers also. Fairness. Ethical executives shall strive to be fair. Ethical executives shall strive to be fair and just in all dealings. Whatever dealings, जो भी वो decisions अपने मार्केट में अपनी कंपनी में ले रहे होंगे, वो फेयर रहते हैं एंड क्लीन एंड चिट रखते हैं। वो भी जो भी डीलिंग्स वो करता है वो फेयर रखते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जितनी रिस्पेक्ट दूसरों को देगा सामने आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही। एथिकल एग्जीक्यूटिव शैल ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट। एथिकल एग्जीक्यूटिव शैल ट्रीट, उनको ट्रीट करने एवरीवन को उनको रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए, तो आपका मार्केट, आपको सामने इतना अवार्ड मिलेगा ही एट एनी कॉस्ट। वो मार्केट हो, ऑर्गेनाइज स्मॉल बिजनेस क्यों ना हो, पर आप जो सबको रिस्पेक्ट दोगे, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट, you will receive more and more respect from other side. Abiding. Ethical executives should obey the law. They should obey the law. उनको लॉ को obey करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन obey करना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू देयर बिजनेस एक्टिविटीज़, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो विच आर रिलेटिंग टू देयर बिजनेस एक्टिविटी, उनको बिजनेस को आगे बढ़ा के उनको लॉ, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को भी ध्यान में रख के उनका खुद का एक मोटो बनाना है, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। सो अबाइडिंग यानी कि एथिकल एग्जीक्यूटिव शुड ओबे द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू देयर बिजनेस एक्टिविटीज। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल और बिजनेस एथिक्स। Maintain confidentially in professional relationship, confidentially in the customers also, अपने and in professional relationships, professional relation में you must have to abide confidentiality. Trust, fulfill commitment in a reliable, you must have to be fulfill commitment रखो, वो भी reliable, responsible रखो, you are the responsible, yes commitment क्या है, I have to do it, I have to prove myself, and efficient manner, और एफिशिएंट मैनर में सब कुछ करिए। बी फुल्ली अकाउंटेबल फॉर एक्शंस, बी फुल्ली अकाउंटेबल फॉर एक्शन, जो भी एक्शंस आप कर रहे हो वो अकाउंटेबल, वो अच्छी होनी चाहिए एंड अकाउंटेबल होनी चाहिए कि नहीं मार्केट में उसका कुछ रहे कमिटमेंट। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपने यूज़ किए वो अच्छे से करो, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल डीलिंग्स, whatever you are doing, financial links जो आप कर रहे हो, you must have to be aware of it. Avoid potential or apparent conflicts of interest. Avoid potential and apparent conflicts of interest. जो भी interest आप कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ, you must have to be potential and apparent. हमेशा apparent कर रही हो, transparent रहो. Look at business relationships. Business people must be ethical toward their customers, suppliers and others in their workplace. Business people must be ethical. Business people हमेशा वो ethical होने चाहिए towards their customers. First of all towards their customers, suppliers, जो भी suppliers वो अपना goods के जो suppliers है उनके साथ, customer के साथ, and others in their workplace. वो वर्कप्लेस पे जो वहाँ पर जो भी जिसके साथ वो काम कर रहे हैं उनके साथ भी उनके रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट बी एथिकल टूवर्ड्स देयर कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड अदर्स इन देयर वर्क प्लेस। सो वी मस्ट हैव टू बी केयरफुल कि हमें अपना बिजनेस कैसे चलाना है। थैंक यू वेरी मच डियर ऑल।